Welcome you all to the next function of next session of macroeconomics. In this session, we will be dealing with the limitation of investment multiplier. As you know, we have studied in previous session that investment multiplier is nothing but investment multiplier is nothing but the amount or the ratio of change in the national income to the initial change in the investment expenditure, planned investment expenditure. Or investment multiplier is the coefficient relating to an increment of investment to an increment of income. Or investment multiplier is the ratio of final change in income to the initial change in investment, where k is equal to, it is arithmetically represented as k is equal to change in income, change in income divided by the change in investment. बेसिकली इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो अमाउंट है या वो डिजिट है जो देखा जाता है, या वो रेशो है जो नेशनल इनकम और चेंज इन द इन्वेस्टमेंट के बीच में है. आप कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे वो दोनों के बीच में है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज नथिंग बट हाउ मच time your investment is multiplied to earn the income. The multiplier, how much amount times your investment is multiplying in future when you are making your investment in present, is known as investment multiplier. As we have studied that investment multiplier कैसे वर्क करता है ग्राफिकली, फिर वो प्रोसेस क्या है उसका, ये सब हम लोगों ने देखा है. फिर उसका रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में डील किया है. इन टुडेज सेशन वी विल बी डीलिंग विद द लिमिटेशन. जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ है वो ऐसे वर्क करती है, वो वैसे वर्क करती है, उसके अजम्पशंस ये है, उसके रिलेशनशिप ये है विद अदर वेरिएबल्स, that aspect also has certain limitations. And what are that limitations we will be dealing in today's session. Am I clear to it? Okay, chalo let's move further. Okay, limitation. Keynes theory of multiplier work under certain assumptions which limits the operation of multiplier. जो ये कीन्स थियोरी जो है मल्टीप्लायर की, ये वर्क करता है अच्छे से और उसके सर्टन अजम्पशंस भी है, उसके कुछ अजम्पशंस भी है, लेकिन वो ऑपरेट करते वक्त उसके कुछ सर्टन लिमिटेशंस भी है जो हमें आज इस सेशंस में देखना है. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स. मतलब कि अगर कंज्यूमर गुड्स जितने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल चाहिए, अगर उतने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इट विल नॉट वर्क. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल नॉट वर्क टू इट्स लेवल. अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स is the basic requisite of investment income proportion and hence of multiplier process to operate. क्या बताया गया है, अगर कंजम्पशन फंक्शन का, अगर कंज्यूमर गुड्स उतने लेवल पर अवेलेबल नहीं है तो उतना मल्टीप्लायर वर्क अच्छे से नहीं होगा. अगर प्रॉपरली वर्क उतने हैं तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा. क्यों? क्योंकि अगर गुड्स अवेलेबल है तो पीपल विल कंज्यूम मोर गुड्स एंड दे विल इन्वेस्ट देयर अमाउंट मोर इन कंजम्पशन रादर देन सेविंग. वंस द अमाउंट is flowed from the hands of the consumer in the market, then the marketer can multiply that amount by investing in some other assets or purchasing some other investment. Clear to it? Okay. According to D.V.K.R.V. Rao, the principle of multiplier does not work vigorously in an underdeveloped country. DVKRV क्या बोलते हैं, डॉक्टर DVKRV ही सेज दैट जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अच्छे से वर्क नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड्स, दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट वेयर कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम. ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर डज नॉट वर्क विगरसली इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया on account of inelastic nature of consumption.
output curve. If the consumer goods are not available, consumer would not be able to spend will not be able to spend the income on these goods. Value of marginal propensity to consume, and hence that of the multiplier would be low. Clear? Second one है मेंटेनेंस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, देन टू द मल्टीप्लायर विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स सफिशिएंट लेवल. Various increment in investment spending have to be repeated at regular interval. जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना चाहिए. अगर वो प्रॉपरली रिपीट नहीं होते हैं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क नहीं करता है. अगर आप सोचोगे कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे, कल हम इन्वेस्ट नहीं करें, आज हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद हम सोचेंगे कि हम बाद में इन्वेस्ट करेंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद हम सोचेंगे कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इन्वेस्ट करेंगे. It should not be like that. When you invest certain amount, so it has to move accordingly to a particular it has to move in a particular way. Various increment of investment spending have to be repeated at regular interval so that the multiplier process receive its regular fixed. अब क्या होता है, जब आप प्रॉपर इन्वेस्ट करते हो, तो जब आप प्रॉपर रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो जो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको प्रॉपरली मिलता है, रेगुलरली मिलता है. इफ़ देयर इज़ अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, national income will fall back to the original low level. Then है overall increase in investment. As increase in investment is one sector should not be affected by the other disinvestment. मतलब क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इकोनॉमी में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो और वहाँ का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है एंड दूसरे सेक्टर का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है. अनदर सेक्टर if this happens, the overall increase in the investment in the country is low or zero, and so is income generation. The multiplier has only little to multiply. अगर ऐसा होगा तो मल्टीप्लायर के पास सिर्फ लिमिटेड अमाउंट रहेगी जो मल्टीप्लाई होने के लिए, ज़्यादा अमाउंट नहीं रहेगी. Marginal propensity to consume should remain unchanged. The marginal propensity to consume is assumed to remain unchanged, following which the value of multiplier would be highly unstable. जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, लोगों की जो कंज्यूम करने की ताकत है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर वो चेंज हो गया तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो मल्टीप्लायर है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोज इकोनॉमी. in other to realize the full impact of the investment multiplier. अगर आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फुल इम्पैक्ट देखना है तो इट इज़ अज्यूम दैट इकोनॉमी शुड नॉट हैव एनी ट्रेड रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर देखना है कि वो कितने फास्टली और ग्रोली होता है, तो आपके जो कंट्री है उस कंट्री का जो रिलेशन, ट्रेड रिलेशन है आउटसाइड कंट्रीज़ के साथ, वो नहीं होना चाहिए. इकोनॉमी में क्लोज इकोनॉमी अडॉप्ट करनी चाहिए उस कंट्री में जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर आप के जो कंज्यूमर्स हैं वो फॉरेन प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपका जो मनी है, जो पैसा है जो कंज्यूमर परचेज़ करने पर लगाते हैं वो फॉरेन कंट्री में चला जाएगा एंड द इन्वेस्टर्स will invest that amount into their assets and their investment. It will not come back to the country and it is very hard to bring that amount to the country again. Therefore it is said that अगर इकोनॉमी क्लोज होगी तो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंट्री में नहीं आएंगे, तो पीपल विल अल्टीमेटली परचेज दोज गुड्स ओनली विच आर अवेलेबल इन द कंट्री. क्लियर टू इट? ओके. एब्सेंस ऑफ टाइम लैग. जब आप कंजम्पशन कर रहे हो तो देयर शुड नॉट बी एनी टाइम लैग, वो प्रॉपर होना चाहिए. एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन शुड नॉट लैग मच बिहाइंड द रिसीट्स ऑफ इनकम. लॉन्ग टाइम लेग्स रिटेन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन थ्रू द मल्टीप्लायर.
नेक्स्ट वन है अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी अंडर नहीं होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम किया गया है, क्योंकि देखो अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है तो ही मेरे पास इनकम जनरेट होगा और वो अमाउंट मैं स्पेंड करूँगी। अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आई विल नॉट जनरेट एनी इनकम एंड हेंस आई विल नॉट स्पेंड एनी अमाउंट फॉर कंजम्पशन। नेक्स्ट, all at full employment, growth of output, income and employment stagnates and multiplier becomes very low. Some employment, some unemployment of insolvency type must exist. Next है constant price. It is assumed that there is no change in the price of commodity and raw material etc. और ऐसा भी assume किया गया है commodity में कोई change, price में change नहीं होना चाहिए, वो constant होनी चाहिए. If the price goes up, consumption will go down and will fall, the multiplier will affect. जैसे कि अगर प्राइस बढ़ जाता है कंजम्पशन लो हो जाता है एंड इन्वेस्टमेंट पे उसका इफेक्ट होता है, और जैसे ही कंजम्पशन प्राइस कम हो जाती है कंजम्पशन बढ़ जाता है एंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है. अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. द अंडर डेवलप कंट्रीज आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एज दे आर हैविंग स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अंडर डेवलप कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से उनके पास डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, एंड डेवलपमेंट का प्रॉब्लम होने की वजह से द थियोरी ऑफ मल्टीप्लायर वर्क व्हेन द कंट्री इज़ हैविंग एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी. और ये कब मल्टीप्लायर का फंक्शन कब प्रॉपरली वर्क करता है, जब किसी कंट्री में प्रोडक्शन की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी तब. Clear to it? This was the limitations what we studied about investment multiplier, and in the next session we will be dealing with the acceleration principle. Clear to it? Okay, please go through the video, and if you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Be at home, be safe. Thank you.